discussed before that, we're going to review the topics according to the syllabus, revise everything according to syllabus. The first part is this motion is circle, the gravitational fields, and lastly the oscillations. If we review the syllabus, we could see that the first point they've asked us is to be sure about what radian is and what angular displacement is. So we are very much familiar with the radian thing, that radian is an angle which is subtended at the center of a circle when the arc length become equals to the radius of the circle. And this is the compulsion that if this is the center, this is the R, this is the arc length S, this theta would only be called radian if and only if S becomes equals to R. So on that basis, theta is equals to S over R, which is radians. Then we have angular speed, which is omega equals to Sir, are you sharing your screen? yes. It's not showing. Oh. Can you see now? Yeah. Okay. So the angular velocity, we have theta over t, and we also know that theta is equals to omega is equals to 2 pi by t or 2 pi f. I was asking you one question that we are familiar with these terminologies. If I was asking before the meeting got ended that if this is circle A and this is circle B, I was asking K at t equals to 0, the point B was at this and point A was this. After t equals to 1, they have reached to this point B and A. What would be the values of angular Wait, which circle? displacement for both A and B? हमने सर्कल किधर बनाया है? Circles, the two circle, किधर बने हुए हैं? circle 1 and circle 2. And नजर नहीं This आ रहा है. one, you guys cannot see it? You can see the syllabus. Oh, I should share the screen then. I was switching in Yeah. between. Can you see now? Yes. I'm asking that at time t equals to 0, both the bodies are at this point, and after time t equals to 1, they have reached to this point. What would be the values of angular displacement for A and B at t equals to 1? Which has covered more displacement, A or B? Where did they start from? They started from this point. And after, they are at the same positions. After time t equals to t1, I'm asking which has covered more displacement. B. Ali, Wait, displacement More. same, right? hmm, what do you say, Ali? एक मिनट. क्वेश्चन आप इधर फिर रिपीट कर देंगे, समझ नहीं आया. Ali, Aram ko samajh mein aa gaya and given the same correct answer because the angle swiped by both A and B is exactly the same. So they both have covered equal displacement. We could see that for A, it's this, and for B, it's this. So the angular displacement covered the angle subtended at the circle by both the bodies A and B would be the same. Anyhow, getting back to the point that the circular motion mainly constitutes of the radian. They have said 2 pi by t and v is equals to r omega. Apart from that, we know that angular displacement is equals to s over r. So from there, s is equals to r theta.
So we also have linear displacement equals to angular displacement with r. Similarly, we also have that v equals to r omega. Do we need to derivate these parts again as well? No. We're familiar with that now, right? So these 3 points are covered here. Then they have discussed understand that a constant force of magnitude is always perpendicular direction of motion causes centripetal acceleration. Understand that the acceleration causes circular motion with a constant angular speed and these respective formulas. So we know that the derivation for these two equations are not important. The centripetal acceleration is given as Fc is equals to mv square over r, and centripetal acceleration is given as a equals to v square over r. Although in when we did these topics initially, we derived these equations as well, but for now we're not going to do that. We know that this was we got it from F is equals to m a. We put this value into the equation. We got F is equals to mv square. The main thing that we need to revise again is that centripetal force is provided by so many factors. For example, it could be provided by gravitation, it could be provided by tension in the string, it could be provided by friction, it could be provided by electric force, so forth and so on. So we need to keep this in mind that centripetal force is not actually a force, but something that we could say that tends an object or make an object to keep moving in a circle. And centripetal force is necessary to keep an object moving in a circle, and this force could be provided with by so many other forces. So moving on to the next part. There was another interesting topic that we know that Fc is equals to mv square over r, and we also know that Fc is equals to mr omega square. So I wanted to know that here it has an inverse relationship with R, and here it has a direct relationship with R. How would we justify the exact same two equations but having a different, totally different concept of F with R? To understand that, as we do not have much time left, to understand that, let's say we have two circles, circle A and we have circle B. Okay. So here it is telling us that the point, the A and point B. Here the radius is small. So FC would be greater for A. And similarly for it would be less for B according to this equation. If we want to justify this equation as well, we have to see that if we are considering this equation, that means we are keeping this as a constant factor. Similarly, here, if B has reached to this point and we say that it has a direct relationship with R, we would say that the angular speed of B would for sure be greater than A. Because अगर दोनों रीच आउट किए इस पॉइंट के ऊपर एट द सेम टाइम और हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स दोनों की सेम है, और तो फिर ऑब्वियसली अगर उसने ये जो यहाँ तक पहुंचने में इसने ज्यादा टाइम लगाया होगा एज कंपेयर टू दिस फैक्टर, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। अगर दोनों एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रीच कर गए हैं, सो दैट वुड मीन दैट बी की जो एंगुलर स्पीड होगी वो ग्रेटर होगी विद ए। सो whenever something comes up like that कि same equation है but having different relations, we should keep in mind that there are certain things that we need to keep constant in that particular relation. So are we clear about this one?
Wait, so which one do we use, like, depending on the question? Depending upon the situation that we're going for. The Okay. only I was explaining this only to clear out any misconception or any issues if we deal with that कि हमने उसको कैसे justify करना है तो हम उसकी reasons मैंने आपको दोनों बता दिए कि इसमें angular speed of b would be greater than a and यहाँ पे जो है fc would for a would be greater than fc of b in this literature because उसका radius जो है वो smaller है than that of b यहाँ पे हम ये लॉजिक अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये वाली लॉजिक अप्लाई करेंगे कि उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ बी ए सॉरी बाकी जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया कि व्हेन इट कम्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास दे आर सर्टेन फैक्टर्स जो उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोगों ने टू मेजर इक्वेशंस पढ़े थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इन अ वर्टिकल सर्कल and centripetal force in a horizontal circle. Horizontal circle के लिए तो हम लोगों ने सिंपली एक क्या किया था उसके लिए हमने एक ऐसे जो था वो बना दिया था and if we go for that हमने ऐसे बना दी थी और पेंडुलम को मूव किया था टू दिस पॉइंट और जब वो इस सर्कल में रोटेट करेगा the forces that is acting on this is tension इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वेट उसका किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर उसकी टेंशन को स्प्लिट अप करते हैं टू इट्स वर्टिकल कंपोनेंट तो ये उसका टी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा उसका टी साइन ऑफ थीटा अगर हम इसको यहाँ पे मूव कर दें तो दिस वुड बी टी साइन ऑफ थीटा सो क्लियरली centripetal force is given by the vertical component of the tension and weight is equals to t cos of theta. That is mg is equals to t cos of theta. So when it comes to horizontal circle हमारे पास बस ये एक easy सी equation होती है. Number of equations comes up when we are discussing about a vertical circle. So Ali, do you recall all these equations? Would you help me with Yes, sir. that? Yeah. तो हमारे पास था कि हमने डिफरेंट पॉइंट्स बना दिए थे उसमें कि ए एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी एट पॉइंट सी एट पॉइंट डी एंड एट पॉइंट ई सो पॉइंट ए के ऊपर टेंशन एंड वेट दोनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है so it would be t plus w the resultant of this would be equals to this factor which means at point a tension जो होगी वो क्या होगी minimum होगी and how would we know that because we would know कि यहाँ से t किसके इक्वल आ जाएगा fc minus w के so टेंशन जो है यहाँ पे मिनिमम होगी बट यहाँ पे एक चीज और मिनिमम होगी वो क्या होगी आया माइंड में Force? वेलोसिटी बिकॉज Oh, speed. मैक्सिमम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है मिनिमम होती है सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे टी अपवर्ड वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है हमारे पास डाउनवर्ड सो यहाँ पे टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ सी एंड एफ सी वुड बी इक्वल सॉरी टी वुड बी इक्वल्स टू एफ सी प्लस डब्ल्यू तो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन जो है वो क्या होगी हमारे पास मैक्सिमम होगी बाकी पॉइंट सी एंड डी के ऊपर यही वाली इक्वेशन बनेगी जो हमने अभी बनाई थी ना कि यहाँ पे टेंशन सिंपली जो है क्योंकि हाँ इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने डिस्कस की थी इफ यू रिकॉल के हम हाउ वुड वी नो कि विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेंशन इन अ स्ट्रिंग डू यू रिकॉल दैट अली Which force is responsible for what? टेंशन इन for the centripetal force Yeah, different cases Contact में force? different है ना. हाँ
Contact एक force. चीज मतलब सिंस वी आर रिवाइजिंग ना, कीप दिस इन माइंड के इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, this is the center of the circle, whatever the forces that would lie on this axis will be responsible for the centripetal force. ये एक्सिस हम बनाएंगे एक, ठीक है, इसको एक्सिस, इसको हम एक्स नाम देंगे, एंड दिस शुड पास फ्रॉम द center of the object and center of the circle. अब जो जो फोर्सेस इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रही होंगी ना, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एफ सी. फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हम जो ऊपर कर रहे थे, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल का सेंटर है, तो इसमें से सिर्फ कौन सी फोर्स पास आउट करी है जो इस एक्सिस पे Tension. लाई करी है? टेंशन. वेट तो कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड. सिमिलरली यहां पे भी वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड. और यहाँ पे एक्सिस में से सिर्फ कौन सी फोर्स पास आउट हो रही है? टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो पॉइंट सी एंड डी के ऊपर कौन सी इक्वेशन वैलिड रहेगी? ये वाली. क्लियर? Yes. तो if anything ever comes up के हमें we are having difficulty dealing with that, हमने बस ये देखना है कि which forces are lying on this axis. इसके अलावा जितनी भी परपेंडिकुलर फोर्सेस होती हैं वो पॉइंट भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं. परपेंडिकुलर फोर्सेस only changes the direction of object. Similarly, to discuss that you might remember कि हम लोगों ने जब भी इवन ओ लेवल्स के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्जेस एंटर होते थे, तो हमने यही कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड डज नो वर्क on the charges. Can anyone explain why no work is done by the magnetic field on the charges? That could also be incorporated into the centripetal force. Ali? They are perpendicular to the charge. Yes, because it's perpendicular. For work to be done, it should be parallel to the force. Similarly, centripetal force also does no work on the body because it's always perpendicular to the motion of the object. Okay? सो हाँ, यहाँ पे एक और चीज भी है कि अगर हमें 1 revolution इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, एंड अगर हमें revolutions पर मिनट से रेडियंस पर सेकेंड्स में जाना है, सो व्हाट वुड वी डू? विल मल्टीप्लाई revolution per minute with 2 पाई रेडियन over 60. ये भी sometimes it comes in handy, यूज हो जाता है. ऑल्दो सर्कुलर मोशन के बहुत कम क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, एंड जितने भी आते हैं वो इन कॉन्टेक्स्ट विद द वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स या वो होते हैं. सिमिलरली अगर हम लोग एक कार की बात करें कि वी आर मूविंग इन अ कार, और उस कार के अंदर हमारे पास वी आर टेकिंग टर्न, ठीक है, सो इसमें हम लोगों को वो फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. सो वी नो दैट, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन पे थोड़ा नीटली बन जाएगा कि वी हैव दिस इंक्लाइन प्लेन, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रही है. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप किया, तो ये उसका क्या हो जाएगा? एन कॉज ऑफ थीटा. और ये क्या हो जाएगा? एन साइन ऑफ थीटा. और फ्रिक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी? ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में. फ्रिक्शन को हम लिख देते हैं ऐसे. अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, अगर मतलब अगर फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रही है, सो फॉर. अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज बेटे यहाँ पे जहन में रखना आप लोग कि if friction is responsible for the centripetal force ना, so we could write it as n sine of theta is equals to
mv square over r. So if n sine of theta is bigger than fc, which means कि if object is moving with slow speed, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रिक्शन है that would act in this direction. If fc is bigger than n sine of theta, तो रिजल्टेंट फ्रिक्शन हमारे पास किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में. सो आप लोगों को याद होगा कि अगर बहुत ज्यादा स्पीड हम लोगों की होती है ऑब्जेक्ट की, तो इट देयर इज अ चांस कि हम लोग स्किड इन कर जाते हैं, और स्लो स्पीड में अगर हम लोग अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करते हैं, हम लोग वी गो आउट ऑफ द सर्कल. सो अगर हम लोग ट्रैक के अंदर हमने अपने आप को मैनेज रखना है, तो इट somehow should be equals to centripetal force. Centripetal force should be equal to the force which is providing it. So we have to keep in mind the object will be kept in a circle only if the necessary centripetal force is given to it by the object. So to keep an object in a circular path, the centripetal force should be equals to this vector. बाकी circular motions हो गया, and mg cos of thetas and sine of theta at towards this normal. बाकी जो है will continue जो so continuing to the centripetal lecture that we circular motion lecture that we done now today, we'll see how what kind of questions comes in the exam. So in the you could see the first section define radian. We have discussed that before. How do we define radian? An angle subtended at the center when arc length is equals to radius of the circle. And that was the only compulsion if we are talking about circle, and this angle theta would be called radian if and only if k this arc length, which is this, is equals to the radius of the circle. That is why theta is equals to s over r. So we must mention this. ये तो हमने multiple time किया हुआ, so we do not need to discuss it. Then what is meant by एंगुलर स्पीड, वो भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था कि ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा ओवर टी. हम इसको इस टर्म्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देन दिस कम्स द पार्ट जहां पे वो चीज अप्लाई होनी है सबसे पहले, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था. उसने 0.72 के अंदर पूछा हुआ है कि किस तरीके से अप्लाई हो रहा है. सो लेट्स जम्प टू दैट नाउ. कि सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है एफ इज इक्वल 0.72 डब्ल्यू. सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं. डब्ल्यू को उसने ऑलरेडी मेंशन आउट किया हुआ है कि इट्स वेट, और एफ को उसने बताया हुआ है इट्स द मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट, विच मींस के हेयर फ्रिक्शन जो हमने कल पढ़ा था ना, कि फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है. क्योंकि सर्कुलर मोशन में कर्व पाथ है, तो हमने कल बात की थी कि फ्रिक्शन कब टूवर्ड्स सेंटर लगती है, कब अवे फ्रॉम सेंटर लगती है, एंड कब एट द पॉइंट लग रही है, नेसेसरी टू गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है. सो एफ इक्वल्स टू 0.72 इंटू डब्ल्यू. डब्ल्यू उसने वेट कह दिया, यहाँ पे सिंपली क्या लग जाएगा आके, एम जी. एंड इफ फ्रिक्शन इज providing the necessary centripetal force, so accordingly करें. तो हम यहाँ पे सिंपली f की जगह पे उसकी वैल्यू ही पुट करेंगे, क्योंकि f here is the centripetal force which is given by the friction. So हम सिंपली यहाँ पे mv square over r is equal to 0.72 mg. बट वन थिंग, क्योंकि उसने सर्कुलर मोशंस के बारे में बात किया, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला विल यूज एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.72 mg. बिकॉज अगर लीनियर मोशन होता तो हम इस फॉर्मूला को यूज कर लेते, लेकिन उसने क्लियरली उस डायग्राम के अंदर जो है वो शो किया हुआ है कि हमारे पास वो ओ, इसको मैं कैसे नीचे लेके आऊं,
क्लियर हो गया वो वाला पॉइंट? MV स्क्वायर ओवर R क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हमारे पास सर्कुलर मोशन है ना यहाँ पे। सर्कुलर मोशन में हम लोग वेलोसिटी सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली ही लेंगे, और वो एम आर ओमेगा स्क्वायर से शो करते हैं हम लोग। ओके, या दिस इज फॉर, अगर लीनियर मोशन होता तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन है, उसने ऑलरेडी हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन वहां से हमसे पूछा था। तो यहाँ से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा? एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड डिस्टेंस उसने हमें 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो 0.72 इंटू 9.8 ओवर 35 इंटू 10⁻⁻², का होल अंडर रूट। तो एक एग्जाम्पल डिस्कस होगी कि जी हम ये वो वाली चीज आ गए थे। अब उससे बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ द प्लेट्स पर मिनट फॉर द मास टू रिमेन ऑन द प्लेट। उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? उसने हमें कहा है रेवोल्यूशंस ऑफ द प्लेट पर मिनट। हमारे पास आंसर किस में आ रहा है? ओमेगा की वैल्यू जल्दी से कैलकुलेट करो, बल्कि मेरे पास कैलकुलेटर है। इट्स कमिंग आउट टू बी वो वाला क्वेश्चन किधर है? 4.49 नजर नहीं आ रहा। रेडियंस पर सेकेंड। उसने हम रेवोल्यूशंस पर मिनट में जाने को बोला है। सो हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया था कि रेवोल्यूशंस पर मिनट से रेडियंस पर सेकेंड में कैसे जाते हैं? 2π/60 करते हैं। तो अब हमें इस सारों को रेसिप्रोकेट कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें इससे रेवोल्यूशंस पर मिनट में जाना है। तो हम 4.49 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2π कर देंगे, क्योंकि आप जब इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो वो 1 ओवर वो 60/2π बन जाएगा ना। रेवोल्यूशंस पर मिनट की इक्वल आ जाएगा ये। रेडियंस पर सेकंड से अगर हमें रेवोल्यूशंस पर मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 2π कर देंगे। सिर्फ इसको रेसिप्रोकेट किया। ये वही जो कल मैंने आपको चीज बताई थी ना, कि रेवोल्यूशंस पर मिनट से रेडियंस पर सेकंड में जब हम लोग जाएंगे तो आ, हम रेवोल्यूशंस पर मिनट की जो भी वैल्यू आई होगी उसको 2π से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड कर देंगे। अब उसने हमें ऑपोजिट करने को बोला तो हम लोग वो चीज यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जब हम ये करेंगे विल गेट 43 रेवोल्यूशंस पर मिनट। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो गए हैं विच यू वर आस्किंग। ओके, जी। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। उसमें उसने रेडियन पूछा, वेट ऑफ स्टोन द रोड इज रोटेटेड एंड अब इसके अंदर उसने बोला है फर्स्ट पार्ट में, ऑन द डॉटेड सर्कल ऑफ फिगर 1.1 मार्क विद लेटर एस द पोजीशन ऑफ द स्टोन। सॉरी, पहले हमें वी हैव टू रीड द होल क्वेश्चन। अच्छा, ये वो वर्टिकल सर्कल वाला, वैसे मैं आपको एक डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल सर्कल में हम लोगों ने जो क्या पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, लेट मी टेक यू बैक। इसके अंदर वही वाला कॉन्सेप्ट लगना है कि वर्टिकल सर्कल के अंदर हम लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे। दिस मैक्सिमम टेंशन किस पॉइंट पे होती है? इस पॉइंट के ऊपर। मिनिमम टेंशन किस पॉइंट पे होती है? इस पॉइंट के ऊपर। और आई गेस उस क्वेश्चन के अंदर भी उसने हमसे यही पूछा हुआ है, और इसकी क्वेश्चन भी यहीं से देख लो कि हमने इक्वेशन क्या बनाई थी। इस पॉइंट के ऊपर क्या इक्वेशन बनती है? T - W = FC। और इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है, क्योंकि यहाँ पे T = F + W बनता है, जिसकी बेसिस पे टेंशन जो है मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहले उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मार्क द पॉइंट ऑन द सर्कल। तो वो हम कहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे? एग्जैक्टली यहाँ पे। दिस वुड बी द पॉइंट जहाँ पे वो है। एंड देन कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के लिए अब हम लोग फॉर्मूला वही यूज करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या फॉर्मूला लगना था अभी अभी मैंने ऊपर शो किया। T - W = FC। सो यहाँ से T किसकी, सॉरी, उसने हमें पहले वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। MR ओमेगा स्क्वायर, उसने ओमेगा कैलकुलेट करने को बोला है। सो T - W/MR का होल अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा। अब वैल्यूज हमें क्या दी हुई है उसने? टेंशन की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 18 न्यूटन्स।
वेट उसने हमें 3 न्यूटन्स दिया हुआ है। 3 न्यूटन्स की बेसिस पे ही हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो एम आर की निकाल लेंगे। एम कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी का फॉर्मूला लगा के, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी, और डब्ल्यू की वैल्यू 3/9.8, यहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। विल पुट एवरीथिंग इन द इक्वेशन। 18 - 3 ओवर 3/9.8 माइनस, सॉरी, रेडियस उसने हमें क्या दिया हुआ था? 85 सेंटीमीटर, टाइम्स 85 × 10⁻²। सो यहाँ से हम एंगुलर स्पीड उसकी कैलकुलेट करेंगे, विच विल बी कम आउट टू बी 7.6 रेडियंस पर सेकेंड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन उसने डिफाइंड रेडियन, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट। अब टेलीस्कोप के अंदर, इसके अंदर वो ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अब आ रहा है, जो हमने लेटर ऑन पढ़ना था, कि ग्रेविटेशन का किस तरीके से कॉन्सेप्ट इसके अंदर पुट हो रहा है। एनी हाउ, वो जब ग्रेविटेशन में जाएंगे, आई रेफर टू दिस क्वेश्चन अगेन। फॉर नाउ इसमें उसने बोला था मून इज अप्रोक्सीमेटली, मून का डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एस्टिमेट द मिनिमम डायमीटर को हमने कैलकुलेट करना है। डायमीटर को जब हम कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर, एंड ओके, कलर हाँ विजिबल है इसके अंदर। अच्छा जी, एस एस इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। आर एंड थीटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, विच इज, तो वहां से, क्योंकि एस यहाँ पे बेसिकली क्या है, डायमीटर ही शो कर रहा होगा यहाँ पे। सो आर की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है? 3.8 × 10⁻⁵ एंड फॉर नेक्स्ट थीटा उसने हमें 9.7 × 10⁻⁻6 रेडियंस दिया। फ्रॉम हेयर डायमीटर विल कम आउट टू बी 3.69 × 10⁻³ और 3.69 किलोमीटर आ जाएगा। देन उसने बोला सर सजेस्ट आर व्हाई द, सेपरेशन भी हो सकता है? सॉरी, आर इज ऑल्सो सेपरेशन? डिस्टेंस, हाँ, रेडियस उसी की मीनिंग में आता है। ओके। फिर उसने ये बोला कि सजेस्ट व्हाई क्रिएटर ऑफ द सेम डायमीटर दैट कैन बी बट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स आर नॉट विजिबल। तो यहाँ पे हम लोग वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अर्थ वर्सेस मार्स की कंपैरिजन में जो चीजें हमारे पास आएंगी, हमारे पास जो साइज बनेगा मार्स वर्सेस वो, अगर हम लोग यहाँ पे मून रखें एंड देन मार्स रखें, हम सिंपली 2 सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। वेयर इज द शेप? Where is the shape? I couldn't find it. हाँ, एनी हाउ, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से बनेगी कि हम लोग यहाँ पे मून वर्सेस अगर मार्स को देखेंगे तो बहुत बड़ा सर्कल बनेगा। आई couldn't डू इट प्रॉपरली, बट यहाँ पे एक ये बन जाएगा, एक ये हमारे पास है, तो ऑब्वियसली इसका एंगल एंड इसका एंगल जो है, कंपैरिजन टू दैट, it would be much smaller for this one. So greater the diameter, थीटा उतना ही हमारे पास क्या होने लग जाता है, स्मॉलर, लेस। एस इज इक्वल्स टू, थीटा इज इक्वल्स टू एस ओवर आर की। सो बिगर द रेडियस स्मॉलर द एंगल, सो ये एंगल इतना स्मॉलर होगा दैट विल नॉट बी एबल टू, उसने कहा सजेस्ट वाई क्रिएटर ऑफ द सेम डायमीटर एज गिवन बट ऑन द सर्फेस आर नॉट विजिबल, कॉज थीटा एंगल इतना स्मॉलर होगा, वो विजुअली हमारे लिए जो है वो, ड्यू टू दैट स्मॉलर एंगल, टेलीस्कोप के लिए वो मेजरेबल नहीं होगा वो एंगल, further from, because Mars is further from the Earth, so the angle of telescope would be smaller. That's why it would not be visible. Then the last question, what is meant by radian? One complete evolution is equals to that factor. अब इसके अंदर हम लोग जो हैं straight away B part के ऊपर चलते हैं कि उसने कहा है
An elastic cord has an extended length of unextended length, original length उसने हमें दी हुई है, extended length उसने अपने ये दी हुई है, as per the weight उसने ये दिया हुआ है. The cord are now वो show that the angular speed of the cord is 8.7 into this vector. अब इसमें यहाँ पे क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे? सिंपली यहाँ पे वेट और टेंशन का आपस में फॉर्मूला लगेगा, कॉज जब भी हमारे पास जितना डाउनवर्ड वेट है उतना ही अपवर्ड टेंशन होगी. ठीक है. और यहाँ पे टेंशन इज गिविंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दैट. सो एम जी वुड बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है. ओमेगा वुड कम आउट टू बी जी ओवर आर. हाँ, यहाँ पे मुझे एक और चीज एक्सप्लेन करनी थी. ऑसिलेशंस में ये चीज रिवाइज होनी है, बट यहीं पे कर लो. जो मास जो सिंपल पेंडुलम होता है, डू यू गाइस रिकॉल कि हम लोगों ने उसका टाइम पीरियड किया था 2 पाई एल ओवर जी ओ लेवल्स के अंदर? नहीं. अली, ओ लेवल्स में, ओ ओ लेवल्स लेवल्स में में हमने टाइम पीरियड किया था ना उसका, सिंपल पेंडुलम का. एनी हाउ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इसके इक्वल होता है, एंड वी नो दैट कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी के इक्वल होता है. सो जब हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये लॉजिक देखो यहाँ से ऑटोमेटिकली बन रही है कि ओमेगा इज इक्वल टू जी ओवर आर. यहाँ पे ऑब्वियसली आर रिप्लेस हो गया एल से. सिमिलरली जब हम वो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, सो उसका ओमेगा जो है वो के ओवर एम के इक्वल होता है. आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि ओमेगा फॉर जो ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसके लिए जो है एल ओवर जी के इक्वल होता है, एंड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम. अभी ये तो आ गया ना कि जी ओवर आर कैसे बन रहा है. जी। G over R is for pendulum. हाँ, फॉर पेंडुलम ओमेगा वैल्यू, एंड फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम ओमेगा इज इक्वल टू के ओवर एम. जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, दिस विल कम इन हैंडी व्हेन इट कम्स टू ऑसिलेशन एंड स्टफ ना. Okay. सो ओमेगा की बस यहाँ पे उसने वैल्यू पुट करनी है. उसने सिंपली हम लोगों को सारा डेटा गिवन दिया हुआ है. यहाँ पे अनएक्सटेंडेड लेंथ उसने 13 सेंटीमीटर दी हुई है. सो 9.8 ओवर 13 × 10⁻² से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा जो उसने प्रूव करने को बोला हुआ है यहाँ पे, कि प्रूव दैट ओमेगा इज इक्वल टू 8.7. इसको पुट करो, यू विल गेट 8.7 रेडियंस पर सेकेंड. अब उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला द कोड एंड द मास रोटेट्स सो दैट द कोड इज वर्टिकली बिलो सी as shown in figure 1.3. Calculate the length of the chord assuming it obeys Hooke's law. अब उसने हमें मूवमेंट भी दी हुई है सर्कुलर. ये अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या इक्वेशन बनेगी, अब आप मुझे बताओगे. दिस इज बिलो टी, यानी वो इस पॉइंट पे लॉ एग्जिस्ट कर रहा है सर्कल के अंदर. इस पॉइंट के ऊपर Tension is क्या इक्वेशन maximum. बनती है सेंट्रीपिटल फोर्स की? अली, हमने अभी रिसेंटली किया है. मैं बोलूं. हम्म. T is equals to W plus something. एम एफ सी एम वी स्क्वायर ओवर आर, वही वाला फॉर्मूला हाँ लगना है. वही. एनी हाउ, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगना है, उसने हमें एल कैलकुलेट करने को बोला है. एफ इसकी जगह पे हम इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो एफ सी वुड कम आउट टू बी टी माइनस डब्ल्यू. एफ सी की जगह पे एम आर ओमेगा स्क्वायर टी माइनस डब्ल्यू. टी टेंशन है तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंगली किसके बराबर होगी, के एक्स के, माइनस एम जी. आर को हम एल से रिप्लेस कर देते हैं तो ये वाली एल बन जाएगा हमारे पास, एम इंटू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब एम कैलकुलेट करने के लिए हमें वो उसने हमें वेट दिया हुआ था ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से एम हम निकाल लेंगे. एम वुड बी इक्वल्स टू 5/9.8. हमने एल कैलकुलेट करना है. ओमेगा की वैल्यू हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है विच इज 8.7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू
के की वैल्यू उसने हमें दी है क्वेश्चन में? नहीं। के इज गिवन और नॉट? इसमें MV स्क्वायर ओवर R नहीं यूज करना? नहीं, हमारे पहले पास वो एम आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, एल ये हम की निकाल बेसिकली सकते है हैं ना, अभी। ये हम वैसे एक्सटेंशन इससे भी माइनस फाइंड करके। आउट कर सकते हैं, 14.8 एंड 13 से। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। डिवाइड करेंगे ना 5 से। इन दोनों को माइनस करेंगे तो के की वैल्यू नहीं आ जाएगी हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट। एफ ओवर एक्स होता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्सटेंशन हम्म। मिलेगी। एफ की वैल्यू उसने हमें क्या दिया हुआ है? वो 5 न्यूटन 5। ले लेंगे। नहीं, वो तो वेट है ना, उसी के साथ अटैच्ड वेट है। टेंशन के बराबर है ना। हम्म। हाँ तो 5 फोर्स है। For K, we are going to use the value of 277। K के लिए थोड़ा सा हमारे पास K इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स होगा। हाँ, हम उसके लिए वही यूज करेंगे K के लिए। F की वैल्यू 5 है, एंड X हमारे पास क्या आ जाएगा? 14.8 माइनस 13। और X में हमारे पास जो L की वैल्यू है वो गिवन नहीं है एज एज फॉर नाउ, तो हम उसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? एल माइनस, एक्सटेंशन है ना, न्यू एक्सटेंशन के लिए एल, हमारे पास न्यू लेंथ गिवन नहीं है तो वहां पे हम एल ही पुट कर देंगे, और एम जी की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 5। हम इस सारे फैक्टर को रीअरेंज करेंगे और एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सो जो आज का बेसिक काम था वो स्टेट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो वी नो दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है कि either we can write F is equals to gmm over r square, या वही कि force of gravitation is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसी की बेसिस पे इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज, उसने बोला है कि where g is the constant explain your working we have to show this fact। अब अगेन जो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर फॉर्मूला किया था, we know कि when something is orbiting, so the gravitational force gives the necessary centripetal force, so from there we're going to rewrite the formula in terms of mr omega square equals to जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। सो क्लियरली उसने इन टर्म्स ऑफ ओमेगा बात किया हुआ था, सर्कुलर मोशंस को इन अकाउंट लेके आए हुए थे, तो एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल्स टू जी एम ओवर मेगा स्क्वायर। बट उसने आर क्यूब इनटू मेगा स्क्वायर की टर्म्स में बात करने को बोला है, सो विल राइट जी एम इंस्टेड ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर हम यूज कर लेंगे, बिकॉज हमें रेडियस ऑफ द अर्थ के रिस्पेक्ट से इसको करना था। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है कि यूज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। अब अगेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, we'll put it here, we have the value of r, we have the value of m, we have g constant, and we have orbital distance, and we have the time period. So using this formula, gm into r square omega की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। हमें ठीक है। एम फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है? 1.5 एंड 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? एक मिनट ऐड व्हाट देता विल हूँ। वी हैव? बल्कि नहीं, हमें वी ओनली नीड टू यूज दिस, हमें वो ऊपर वाले की वैल्यू यूज ही नहीं करनी। सो 6 टाइम्स 10 रेज टू हाँ पावर ओके। 11 over 6.67 into 10 raised to power minus 11। I've put 11 here because वो किलोमीटर्स के अंदर था, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा तो 10 raised to power 11 हो जाएगा। इसका क्यूब था डिवाइडेड बाय जी इंटू 2 पाई
टाइम उसने हमें 2 years दिया हुआ है, सो ईयर्स टू हमें उसमें जाना है। सो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 365, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60. So from there we'll get the value of m as 3.2 into 10 raised to power 31 kilograms. सो अगेन सी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ग्रेविटेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रहा है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि दीज टॉपिक्स आर मोस्टली लिंक टू ईच अदर, डायरेक्टली नहीं आते। अगेन यहाँ पे उसने जो है फॉर्मूला प्रूव करने को बोला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में उसने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस किया हुआ है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। सेकंड पार्ट के अंदर उसने हमें कहा है कि हमें प्रूव करना है। अगेन विल यूज द सेम फॉर्मूला, GMM ओवर आर केप्लर्स स्क्वायर। लॉ बोला है ना, हाँ केप्लर्स लॉ जिसमें आता है। हाँ, MR ओमेगा स्केयर को ही रीअरेंज किया उसने, बस ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिया। सो यहाँ से GM हो जाएगा R³ इंटू ओमेगा स्केयर, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाय T पुट कर देंगे। सो GM इज इक्वल टू R³ इंटू 2 पाई बाय T का स्केयर, तो ये बन जाएगा R³ 4 पाई स्केयर ओवर T स्केयर। तो ये वो फॉर्मूला की वेरिएशन आ गई। अब उसने हमें नेपच्यून और यूरेनस के रिस्पेक्टिव मून दिए हुए हैं, उनके रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, 5.9 एंड 30 टाइम पीरियड दिए हुए हैं, विच मीन्स उन्होंने हमें ये वाले फैक्टर्स दिए हुए हैं सबके, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, एंड उसने हमें मास कैलकुलेट करने को बोला है। अगर हम इसी वाले फैक्टर को आपस में रिलेट करें, सो वी कुड क्लियरली सी कि यहाँ से GM जो है इज प्रोपोर्शनल टू 4 पाई स्क्वायर R³ ओवर T स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप निकल आएगा, ये वाला फैक्टर हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। सो M इज प्रोपोर्शनल टू R³ ओवर T स्क्वायर, राइट? सो पुटिंग द वैल्यूज, अब हमने नेपच्यून ओवर या यूरेनस करना है, विच मींस नेपच्यून का मास ओवर यूरेनस का मास, और उनके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला कैसे रीडिजाइन हो जाएगा? M नेपच्यून ओवर M यूरेनस इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पुट इन कर रहा हूँ, R³ इंटू T स्क्वायर ओवर R³ इंटू T स्क्वायर। अब ये T स्क्वायर किसका है हमारे पास? यूरेनस का। ये T स्क्वायर किसका है? नेपच्यून का। ये रेडियस हमारे पास किसका है? नेपच्यून का। और ये किसका है? यूरेनस का। वो रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट इन करेंगे, वो हमने सामने ही दी हुई है। रेडियस ऑफ नेपच्यून कितना दिया हुआ है? 3.5 इंटू 10⁸ मीटर्स। 8 इसलिए 10⁻5 किलोमीटर है, तो 3 पावर उसमें ऐड कर देंगे। और इसका टाइम पीरियड डेज में दिया हुआ है, सो 13.5 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी डू नॉट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग ओवर, क्योंकि इसका हाँ क्योंकि रेशियो है, टाइम पीरियड ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, डेज डेज से कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट ना करें। हाँ, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी तो रेशियो है ना, यूनिटलेस क्वांटिटी आनी है, तो हाँ यहाँ पे भी रेशियो, यूनिटलेस क्वांटिटी आनी है। ओके। सिमिलरली यहाँ पे 5.8 इंटू 10⁸8, बल्कि यूनिट्स भी नहीं, ये भी नहीं लिखते, ये भी हाँ कन्वर्ट कैंसिल करने की आउट, जरूरत नहीं। हाँ ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हम्म, तो इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको भी कैंसिल आउट करके यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं 13.5 ओवर 5.83। टाइम पीरियड्स के स्केयर्स थे, तो इनके साथ स्केयर्स आ जाएंगे, इनके क्यूब्स थे, इनके क्यूब्स आ जाएंगे। सो पुटिंग इन द डाटा विल गेट द रेशियो एज 1.18। अगेन रेशियो थी तो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे विल गो विद दिस। माइक आपका म्यूट है। अगेन उन लोगों ने जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वही प्रूफ मांगा हुआ है जो हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे उन्हें करके दिया था, सो वो उन्होंने रिपीट किया हुआ है। सो वी ऑलरेडी हैव डन दैट। फॉर सी पार्ट उन्होंने बोला हुआ है यूज फिगर 1.1 एंड द एक्सप्रेशन इन बी टू रिमाइंड द मास ऑफ द नेपच्यून। हमें मास फाइंड आउट करना है,
सो अगेन हम उस फैक्टर को यूज करेंगे. डू वी हैव एनी डाटा अवेलेबल? उसने कहा some of the planets in the solar ग्रेड ही system निकालेंगे. have several moons that have circular orbits. A planet and each of its moon may be considered to be point masses. Show that where G is the constant vector, M is the bow. The planet Neptune has 8 moons, each in circular orbit of radius x and period t. The variation with t square of x cube of some of the moons are shown in the figure. Use figure 11 in the expression to determine the mass. So कोई भी ऐसा रैंडम सा पॉइंट ले लेते हैं, इसके अंदर हम यही वाले पॉइंट्स ले लेते हैं. इसके रिस्पेक्ट से हमारी वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी? लेट्स फाइंड आउट. ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4.5, बल्कि 4.5 ही बन रहा है अप्रोक्सीमेटली क्या. एंड उसके रिस्पेक्ट से ये वाला पॉइंट हमारे पास मास का क्या बन रहा है? 3.5. आई गेस ये 3.5 बन रहा है. सॉरी 0.35. सो टाइम इज 0.35 और यहाँ से 4.5 इंटू 10 to the power 14 किलोमीटर्स. अब इसके अंदर हमें यूनिट्स को इन अकाउंट लाना पड़ेगा. उसका रीजन ये है कि यहाँ से है 0.35 डेज. अब फॉर्मूला हमारे पास उसने यूज करने को बोला, ये GM इज इक्वल्स टू मैं रेस कर दूं. ओके. 4 पाई स्क्वायर इंटू r³ टी स्क्वायर की वैल्यू के अंदर हम लोगों ने जो है वो डाटा पुट करना है. सबसे पहले तो हम किलोमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाते हैं. तो किलोमीटर जो है वो 10 to the power 3 के इक्वल होता है. तो किलोमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? +3 + 3, सो 10 to the power of 9. सो वो ऑलरेडी 14 में गिवन है. तो x की वैल्यू बन जाएगी, x³ की वैल्यू बन जाएगी 4.5 to the power of 14. एंड कितना बन जाएगा? 23. 14 + 3 कितना होगा? 14 + 9 कितना होगा? 23. 23. हाँ सही बोला था मैंने. 23 मीटर क्यूब. एंड डेज हम लोग जो है 35. टी स्क्वायर जो है 0.35 इंटू 24 इंटू 3600 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग. ठीक है. और यही वैल्यूज पुट कर देंगे उसके अंदर. तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 2.6 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर ऑफ 9 सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा. अब इसको इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे. m इज इक्वल्स टू, हमें जी भी वहां लाके डिवाइड करना. 4 पाई स्क्वायर इंटू r³ की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? 4.5 इंटू 10 to the power 23 डिवाइडेड बाय t which is 2.6 to the power of 9 into square and to 6.67 multiply by 10 raised to power -11. सारे यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 1.02 to the power 10 raised to power 26. Do you want me to cancel all the units? No, it's fine, it's fine. वो ऑब्वियसली क्लियरली जी के यूनिट्स जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वो कैंसिल आउट होकर सिर्फ हमारे पास ग्राम्स के वो रह जाएंगे, मास के यूनिट्स रह जाएंगे. बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव अगेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एंड यहाँ पे उसने v की वैल्यू फाइंड, ये भी हमने कल क्वेश्चन किया था, उसी को यहीं से रिज्यूम करते हैं. Mic mute. माइक आप म्यूट पे है सर. सर आपका माइक माइक म्यूट पे है. डिड यू गेट दिस पार्ट? या गॉट इट. ये तो हमने कल ही किया था. नेक्स्ट पार्ट में उसने रेशियो ऑफ वेलोसिटीज फाइंड आउट करने को बोला है. तो हम रेशियो ऑफ वेलोसिटी में यही फॉर्मूलाज यूज करेंगे. तो क्लियरली जब हम यहाँ पे आ जाते हैं,
इसी को ही ओपन कर लेते हैं। उसने वी ए ओवर वी बी बोला, विच मीन्स वी ए ओवर वी बी वुड बी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर मल्टीप्लाई बाय आर ओवर जी एम। रेसिप्रोकल हो जाएगा ना जब हम इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, रेडियसेस के अंडर रूट्स आ जाएंगे और उनकी उन्होंने वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे। हम उसको सिंपली क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास आर ए हो जाएगा, ये मेरे पास आर बी हो जाएगा। सो आर बी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या दी हुई है, 2.2 टू द पावर ऑफ 10 ओवर 1.3 to the power of 8 whole under root, and the answer will come out to be 13.0। देन उसने टाइम पीरियड फाइंड आउट करने को बोला हुआ है। टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ एक एक चीज हो सकती है कि जो हमने अभी रिसेंटली किया, v इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो अगर हम वो फैक्टर यहाँ पे पुट करें, सो आर ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम स्क्वायर ले लेते हैं इसका, v स्क्वायर, बल्कि सॉरी हम उसको एज इट इज, हाँ v स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू जी एम ओवर आर। ठीक है, वो हमने प्रीवियसली भी तो वी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में वैल्यू निकाली थी ना, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर की इक्वल आता था, तो हमने उसको डायरेक्टली वहां पे वैल्यू पुट कर दी। एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड विल हैव आर एंड ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम। सो ये बन जाएगा, हमें टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो टी स्क्वायर वुड इक्वल्स टू आर इंटू 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। अब टी ए ओवर टी बी करना है तो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू ले लेंगे। सो यहाँ पे टी की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, टी वुड कम आउट टू बी 4 सॉरी आर अंडर रूट इंटू 2 पाई ओवर अंडर रूट जी एम। अब टी ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट आर इंटू 2 पाई ओवर अंडर रूट जी एम मल्टीप्लाई बाय तो वही चीज नहीं बन जी जाएगी। एम ओवर आर इंटू 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जी एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, वी विल बी लेफ्ट विद आर ओनली। स्पीड्स, एंगुलर स्पीड्स उसने वैसे हमें दी नहीं है, v इज इक्वल्स टू, हाँ एंगुलर स्पीड उसने हमें दी हुई है, बल्कि उसने हमें एक पूरी रेशियो की वैल्यू भी दी हुई है कि नहीं। We did a little bit of a mistake here. So this would come out to be r square into 2 pi by t square is equals to जी एम ओवर आर। आर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा आर क्यूब इंटू 2 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम। हमें टी की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू मेक टी द सब्जेक्ट, सो टी स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू आर क्यूब इंटू 2 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। ठीक है, जब हम इसका वो लेंगे स्क्वायर रूट दोनों लेंगे, सो टी वुड कम आउट टू बी आर इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 2 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। जब हम इनको रेशियो में लिखेंगे टी ए ओवर टी बी की फॉर्म में, तो ये फैक्टर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस। तो ये बन जाएगा आर ए 3/2 ओवर आर बी 3/2। वैल्यूज उसने हमें प्रीवियसली दी हुई है, हमने यही वाली सामने, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही थी, 1.3 into 10 raised to power 8 divided by 2.2 to the power of 10 and 3/2 and 3/2।
वैल्यूज इसके अंदर पुट इन करें और अपने आंसर्स निकालें. ओके. After putting the values, we'll get the answer of the ratio as 4.4. अब अगेन रेशियो है तो यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, तो 10⁻⁻⁴. लास्ट में उसने हमें ऑर्बिट फाइंड आउट करने को बोला ऑफ मून वेयर द प्लैनेट्स एंगुलर स्पीड, द प्लैनेट स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड एंगुलर स्पीड ऑफ दिस वेक्टर. हमें पता है कि टी ए ओवर टी बी की अभी रेशियो हमने क्या निकाली थी, 4.5 × 10⁻⁻⁴. अब इसका यहाँ से टी ए किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी टी बी उसने कैलकुलेट करने को बोला, तो टी बी वुड बी इक्वल्स टू टी ए ओवर 4.5 × 10⁻⁻⁴. अब हम वापस से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल होती है किसके, टाइम रेट किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय ओमेगा के. ठीक है. ठीक है. सो ओमेगा की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई विच इज 1.7, तो उसको हम पुट करेंगे. टी बी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻⁴. हाँ, -4 +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे एंड विल गेट 8.1 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड. सो टाइम पीरियड आ जाएगा 8.1 टू द 7 सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने हमें पहली दफा आफ्टर सो लॉन्ग आया व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड. सो ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू वी डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स पर यूनिट रेडियस. मास, फोर्स पर यूनिट मास भी कह सकते हैं उसको. ओके. रिपीट फोर्स सर. पर force per unit mass would be more appropriate because g is w is equals to mg होता है, और वहीं से उसकी वो वैल्यू आ जाएगी k, फोर्स पर यूनिट, सॉरी. उसने ग्रेविटेशन पोटेंशियल तो नहीं पूछा ना, ग्रेविटेशन फील्ड पूछा था. हाँ, ग्रेविटेशन फील्ड यही होती है. फिर है हमारे पास ग्रेविटेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ की उसने वैल्यू पूछी हुई है हम लोगों से. हाँ जी, न्यूटन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो हमने बिल्कुल स्टार्ट में वैसे डिस्कस किया था. व्हाट हाँ, वाज वही F इक्वल टू जी एम एम ओवर, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. यस, जी एम एम ओवर. और फिर नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है कि उसकी वैल्यू बताएं हम लोग कि क्या बनती है. लुक इनटू द डाटा कि उसने हमें क्या दिया हुआ. फॉर क्वेश्चन नंबर, this question they have asked us to, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें हमें कहा है कि प्रूव करें ई के इज इक्वल्स टू, लेट मी यूज दिस कलर, दिस इज बेटर, इसका थिकनेस क्लिक कर लेते हैं. ओके, दिस इज बेटर. सो ई के उसने सबसे पहले फाइंड आउट करने को बोला हुआ है. फॉर दैट विल यूज अगेन fg is equals to fc. From there we got mv square over r for fc and gmm over, let's put x's क्योंकि उसने क्वेश्चन के अंदर भी x की टर्म्स में बात की हुई है. सो x स्क्वायर आ जाएगा, mm से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड later on we'll use it, what will we have, V will be equal to square root of. from here we'll have v square over, just v square is equals to gm, or we can do one more thing here. If I multiply 2 on either sides,
ठीक है, दिस टू यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड आई हैव 1/2 mv squared is equals to gmm over 2x. From there, this becomes the kinetic energy, ek. This is equal to gmm over 2x. We do not need to get into this part. बल्कि we have to start from there. Anyhow, then उसने बोला state an expression in terms of g, m, m, and x for the potential energy EP of the satellite. So we know that k, that is equals to phi into m. Phi is gm over r with a negative sign into m. So वो आ जाएगा, तो हमने formula लिख देना है. Using your answer from 1 and 2, drive an expression for the total energy. Total energy किसके इक्वल होती है? ET is equals to EP plus EK. We have the formula of EP here, and we just write the equation for EK. We'll just simply write it down as GMM over 2x plus into minus GMM over x. Let's write that into x as well. So after simplifying, we'll get minus GMM over 2x, denominator and the rules and stuff like that. Then we have, they have asked us to I accidentally used the annotation of the uh, Zoom in. Zoom, and that will not stay. Anyhow, I'll write it down later. Again. Then they have asked us to find out the value of EP. Let's see what's this. Total energy they have asked. This is ET, this is X, this is EP, and this is EK. So in those terms, हमने जो है, we need to discuss all that. So E total we just got as, what was the formula? Minus GMM over 2x, and keeping that in view, उसने कहा कि when small resistive force acting on the satellite causes the radius of its circular orbit to change, use your answers and need to state for the satellite whether each of the following quantities increase, decrease, or remain constant. So clearly, when resistive force will act on the satellite, its total energy would decrease. And if it's decreasing, then this value become more and more negative. So for the first one, we'll get decrease. Then we have radius. Again, we'll use the same equation, and it follows that as ET would decrease, X would also decrease. Radius of the orbit would decrease because it will now start falling into it now. So the X would also decrease from this expression. Won't it increase? Because negative sign है ना, Okay, okay. ठीक है. radius of the orbit would decrease. And then EP, for EP we have GMM over X only. So again, if X is decreasing in the previous part, then EP would also would decrease. And the kinetic energy, what do we have for kinetic energy? Kinetic energy GMM would, over 2x. kinetic energy would increase. And for this, I would ask you to recall that one thing, when they are closer to the massive object, their kinetic energy increases, and when they are further away, their potential energy increases. So that concept also comes into account. So when R is decreasing, sorry, this X is decreasing, this means it's getting closer to the planet. Due to that, the kinetic energy would increase. Potential would decrease. ये दोनों आपस में relate हो गए. Total energy obviously जब rest of the factors on to do this factor जो है वो उसकी वजह से decrease होना शुरू हो जाता है.
Because whenever there are resistive forces acting on the object, in general, even if we do not talk about the satellites, we know that it is when the resistive forces act on the body, the total energy of the body decreases. Otherwise, they are always equal if no resistive forces are acting. All right. Okay. So the first part here, they have asked again what the gravitation field is. So we know that a gravitation field is a region of space where a mass experiences force. We also know that gravitational field is force per unit mass. You could write in either way. The second part they have asked, okay, Newton's law of gravitation. We know that that is equals to gmm over r square. So force of gravitation is equals to product of the two masses and inversely proportional to the square of distance between them. In the next part, they have asked us to find out the ratio of gravitational field strength. So if we compare these two, we'll get G is equals to Gm over R square. So we know G is proportional to 1 over R square. So we have to find out the ratio of the two. We know that this is a constant. So G Earth over G Jupiter would, when we'll write it as 1 over R square Earth and 1 over R square Jupiter. So it would become R square Jupiter over R square Earth. Let's put the values they have given us in the question. So that would be, that would come. So our Jupiter has a value of 7.78 to the power of 8 ka square over 1.5 to the power of 8 ka square. By putting this in the calculator, we'll get 27. So the ratio would be 27. For C part, they've asked us to validate this equation. For that, we know and we have the formula FC equals to FG. So putting that in the equation, we'll get FC is mv square over r and gmm over r square. So we'll put the value of v into the equation. We'll have mr square omega square into over r is equals to gmm over r square. Let's put the value of omega as well into the equation. We'll have, let's do it here. 1 r cancel. So mr 2 pi by t square here square. So because omega is equals to 2 pi by t, so putting that will have and g mm over r square. They have asked us to separate out, make m the subject. So we'll multiply everything over there. So this would become, this m will be cancelled out. We'll have r cube into 4 pi square over t square into g equals to m. Hence, we have this formula that I've given us. Now they have asked us to find, use the expression to determine the mass of the Earth. Sorry, the mass of the Sun. Do they have given us any value above Earth and Sun? They have given us the period and the radius of the Earth is given also. And okay, let's just put the values in the into this equation. So we have 4 pi square into r cube. The value for r would be 1.5 to the power of 11 cube over g, which is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 times t square, which is already in seconds. So this would be 3.16 into 10 raised to power 7 square. So putting that into the calculator, we'll have 2 to the power of 30 kilograms, the unit already there.
Then, yes, we have discussed that again Fc equals to mg, you'll use the formula, and Fg equals to gmm over r square. They have used the constant x, so I'm using x also here. So multiplying it with 2 and dividing it with 2, will multiply 2 over here, and 1, this will become 1 by 2 mv square, which is the kinetic energy, and this will become this. So hence we'll have the proof here that they have asked us. Let me erase that so that you could see here. And next, they have asked us that discuss gravitational potential energy in terms. We know that potential energy is equals to gravitational potential into mass. So putting that in the vector, gravitational potential equals to minus gm over r. I've used x again and into m, so gmm over x. The next part, they have asked us to find out the total energy. This is equals to EP, that is gravitational potential energy plus kinetic energy. We have the value of EP here. The kinetic energy here, will solve the equation, will get gm over 2x. In the latest state, they have asked us to find out the total energy, the radius, the potential energy, and the kinetic energy. Discussed all the formulas here. So they have discussed if the resistive forces are present. We know that whenever there is a resistive force present, then this affects the value of energy. So if the resistive forces are present, the total energy would obviously decrease. So if the total energy is decreasing, so the radius would be smaller. And why is that? Because this has a negative value. We could see here this has a negative value. So as the total energy is decreasing, so this would become more negative and x would become smaller. So in that context, x would decrease. Potential energy is related to this factor, and we know if the radius decreases and it get closer to the massive object, the potential energy decreases and kinetic energy would automatically increase. We have studied that in star and cosmology chapters as well, that the object is further away, it has it has more potential energy, and when it's closer to something, due to the stronger gravitational pull, the velocity or the speed of the object increases, and hence the kinetic energy of the object increases. So summing this up here, we have discussed um, the gravitational potential questions in terms of all the mathematics and the centripetal force. In the next lecture, we'll study the graphs and everything for the gravitational potential energy, and then we'll move to oscillations.